session. Now Dr. Bhatt will present his lecture, and Janhavi will introduce him to all of us. Come, Janhavi. We are in the 7th session of this workshop, and we have Professor Vasant Kumar Bhatt to guide us on textual criticism. He has done his PhD in Paninian system of Sanskrit grammar, and he has learnt grammar traditionally in Varanasi with Guru Vaiyakarana Kesari, Pandit Shri Balakrishna Pancholi ji. So I think I can use the word Krutabhuri Parishrama for him because he has learnt grammar traditionally. He was a professor and head in Bhasha Sahitya Bhavan, Gujarat. He is working as a visiting faculty in Hemachandracharya, Uttar Gujarat University. His teaching areas are mainly Paninian grammar, translation, Vedic Sahitya, Sanskrit literature, manuscriptology, then bringing out the critical edition, and Sanskrit and computers. So I think his vast experience can be fathomed from his teaching areas itself. And it is not possible to put it in a few words. His expertise in critically editing text is revealed by the critical edition of Abhijnana Shakuntala. He has created Abhijnana Shakuntala critical edition based on southern manuscripts and Kashmir version of this text. He has been invited to share his knowledge on manuscriptology in National Manuscript Mission, New Delhi. He has given guidance in 35 workshops conducted by NMM. In 2007, he has been appointed as an expert in the Gurukula Yojana of National Manuscript Mission. His scholarship is highlighted by his social orientation. He is involved in various projects like production of CDs and books for Sanskrit learning. And he has his own blog for academic writing as well. He has been working as an advisor for PhD students since last so many years, and he has given guidance to 20 students, and still 4 students are working under his guidance. He has 36 books to his credit and 150 research articles to his credit. So, and he has attended more than 100 conferences. So I think it is rather difficult to sum up or enumerate his experiences in teaching and research in such an inadequate time and words. And after all, I think he is a grammarian, so he believes in Laghava. So with this much introduction, I request him to share his insights with all the participants on textual criticism. नमस्कार। आज पुण्य श्लोक प्रोफेसर एस.के. बेलवलकर जी के आत्मा ने ही मुझे यहाँ बुलाया है, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरी श्रद्धा के साथ उनके पावन स्मृति को मैं प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रभाषा में ही मेरा विचार प्रस्तुत करूँगा। और दूसरा, मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया था सम प्रॉब्लम्स इन क्रिटिकल टेक्स्ट एडिशन, अब पूरे इंडियन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताने की मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि मैंने सारे एरिया में काम नहीं किया है। एक ऐसी टेक्स्ट महाकवि कालिदास की जो 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी, और उस टेक्स्ट की क्रिटिकल एडिशन बनाने के लिए सारे विश्व के सभी विद्वानों ने काम किया है।
तो उनके कामों की यदि समीक्षा की जाएगी तो अपने आप में इंडियन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के प्रॉब्लम क्या है वो हमारे सामने उजागर हो जाएगा। मैंने सोचा कि जिस पर मैंने 10 से अधिक वर्षों से काम किया है और जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं, वो अभिज्ञान शाकुंतल एक कृति जो सुप्रचलित है, बार बार छपी हुई है, फिर भी कितने सारे प्रॉब्लम्स है, उसको उजागर करने के लिए यही एक टेक्स्ट उदाहरण के रूप में पर्याप्त रहेगी। तो शाकुंतल तो एक बहाना है, लेकिन भारत की और भारत के बाहर वाले विद्वानों की मनीषा पाठ संपादन के विषय में क्या कर रही है, क्या सोच रही है, वो पहले एक मेरे पूर्वार्ध में जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो है 225 वर्षों का इतिहास। करीब 2 शताब्दी से इस नाटक का प्रकाशन हो चुका है और सारी दुनिया की मेधाएं उस पर काम कर रही है। तो उसका एक ब्यौरा पूर्वार्ध में हम देंगे। बाद में मैंने जो काम किया है, मैं जो सोच रहा हूँ, वो उत्तरार्ध में मैं प्रस्तुत करूँगा। इसलिए मुझे पीठबल देने के लिए पार्श्व में विराजमान बहुलकर साहब जी, आपको सादर प्रणाम करते हुए डॉक्टर मैत्रेयी देशपांडे जी और आप सब संस्कृत अनुरागी भविष्य की पीढ़ी के नए नवोदित या उदीयमान स्कॉलर्स, आप सबको प्रणाम करते हुए इस विषय में हम अवगाहन करना शुरू करते हैं। संभवतः 2 धाराओं में पाठ संचरण हुआ है। जैसे कि हमने पहले कहा कि यदि कालिदास को हम प्रथम शताब्दी में रखते हैं और रखने ही होंगे, तो ये नाटक आज से 2000 वर्ष पहले लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतला नाटक का मूल पाठ कालिदास के समय में जो लिपि चलती थी वो तो ब्राह्मी लिपि थी। उस ब्राह्मी लिपि में वो नाटक लिखा गया था कालिदास के अपने हाथों से। तो एक कवि प्रणीत पाठ का संचरण मैन्युअली होता गया। मानवकृत प्रतिलिपिकरण से वो बात पाठ परंपरा शुरू हुई। साथ साथ में, क्योंकि यह एक नाट्यकृति थी, अभिनय एक काव्य था, इसीलिए नटमंडली ने बनाई रंगावृत्ति, स्टेज स्क्रिप्ट, उसकी भी एक पाठ परंपरा पांडुलिपियों में चल रही है। उन दोनों तरह के पाठों का बार बार प्रतिलिपिकरण एवं लिप्यंतरण भी होने लगा है, और जिसके कारण आज देश में और विदेशों में जो भी पांडुलिपियाँ इस नाटक की मिल रही है, वो शारदा, नेवारी, मैथिली, बंगाली, नंदीनागरी, देवनागरी, ग्रंथ, कन्नड़, तेलुगु एवं मलयालम, इन सारी लिपियों में लिखी हुई पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध हो रही है। किंतु उन पांडुलिपियों में केवल रंगावृत्तियों के ही पाठ आज तक उपलब्ध हुए हैं, ये मेरा मानना है, ये मेरी आज की उपस्थापना है। कवि प्रणीत पाठ की कोई धारा पांडुलिपि में चली आ रही हो, ऐसी कोई भी पांडुलिपि मेरे ध्यान में नहीं आई है। और जिन विद्वानों के हाथ में जो भी पांडुलिपि आई है, जिस तरह से हमको उनका परिचय दिया गया है, वो लोग भी शायद नहीं जानते हैं कि ये केवल स्टेज स्क्रिप्ट, रंगावृत्तियाँ ही पांडुलिपियों में उपलब्ध हो रही है। तो अभिज्ञान शाकुंतल जो आज से 2000 वर्ष पहले लिखा गया है, उसकी मौलिक परंपरा यानी कवि प्रणीत पाठ की कोई सीधी धारा विद्यमान नहीं है। और इसीलिए हम क्या खोजेंगे, किस पाठ को हम पुनर्गठित करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करके प्रस्तुत करेंगे, वो पहला एक सवाल खड़ा होता है। तो सबसे पहले जो सारी दुनिया के सामने चीज आई, तो 1791 में सर विलियम जोन्स ने उसका अंग्रेजी प्रथम अनुवाद किया। यह भाषांतर आज से 225, आज 2017 चल रही है, और भांडारकर इंस्टीट्यूट की शताब्दी वर्ष भी है। तो 225 वर्ष पहले जिसका प्रकाशन हुआ है, और उसके द्वारा ही सारे यूरोपीय देशों में इस नाटक की जानकारी फैली हुई है। लेकिन उसमें उन्होंने कौन सा पाठ लिया था, किसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था, वो भी जानने योग्य है। तो वो बंगाली पाठ था।
बंगाली पाठ का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जॉन्स ने प्रस्तुत किया था, उसके प्रिफेस में एक वाक्य उन्होंने छोड़ा है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ड्रामा कुड बी शॉर्टेंड। कुछ ज्यादा इंटरपोलेटेड पोर्शंस उनके ध्यान में आए लगते हैं, इसलिए उन्होंने कहा इस नाटक में कटौती हो सकती है। ऐसा विचार जो उन्होंने व्यक्त किया वही एक पहली पाठालोचना की शुरुआत थी। यहीं से बात शुरू हो जाती है। उसके बाद फ्रांस और जर्मन देश में जो अनुवाद हुए, उनकी जो जानकारियां हैं वो इस तरह की हैं कि 1803 में पेरिस में प्रथम फ्रेंच अनुवाद हुआ, बाद में शिज्जे का 1830 में हुआ, जिससे फ्रांस में कालिदास का परिचय फैला। और वही 1791 में जो जॉर्ज फॉस्टर ने विलियम जॉन्स के अंग्रेजी अनुवाद का जर्मन अनुवाद किया, उसी वर्ष में वो गद्य में अनुवाद किया, और उसी अंग्रेजी अनुवाद के जर्मन अनुवाद को पढ़कर गेटे या ग्यूथे प्रसन्न हुए थे। तत्पश्चात 1803 एवं 55 में भी जर्मन अनुवाद और भी हुए। इस तरह से जर्मन और फ्रांस देशों में उसका अनुवाद जो फैला वो भी बंगाली पाठ का फैला है। बंगाली वर्जन ही पहले यूरोप में पहुंचा है। अब हमारे देश में कब से इस नाटक का पांडुलिपि से प्रकाशन होने लगा, तो प्रेमचंद तर्कवागीश ने 1839 में प्रथम बंगाली पाठ का संस्करण निकाला, जिसमें उन्होंने 228 श्लोक वाला पाठ दिया। वो भारत में छपा पहला संस्करण था। उसके बाद डमरू वल्लभ पंत ने नेवारी पांडुलिपियों के आधार पर 1870 में बंगाली का अति दीर्घ पाठ, जिसमें 230 श्लोक थे, उसको प्रकाशित किया। अब देखिए जो वर्षानुक्रम है उसमें डॉक्टर रिचर्ड पिशल आते हैं 1876 में। उन्होंने प्रथम बार बंगाली रिसेंशन का क्रिटिकल एडिशन निकाला जो हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज से छपा है। उसका दूसरा संस्करण भी 1922 में निकला है। उसके बाद दिलीप कुमार कांजीलाल जो अभी विद्यमान है कोलकाता में, उन्होंने 1880 में वो करीब 10-12 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठकर उन्होंने काम किया, बहुत सारी नई पांडुलिपियां देखी। उसके आधार पर उन्होंने फिर से रिचर्ड पिशल के बाद दोबारा अटेम्प्ट करके बंगाली वाचना निकाली और बंगाली पाठ ही कालिदास प्रणीत है ऐसा प्रस्तावित करने का प्रयास किया, ऐसे विचार व्यक्त किए। अब देवनागरी पाठ की क्या स्थिति रही, उसके प्रारंभिक संस्करण का क्या सिलसिला है, तो 1842 में ऑटो बॉटलिंग ने देवनागरी पांडुलिपियों को आधार बनाकर बॉन में प्रकाशन किया, जिसका द्वितीय संस्करण 1846 में निकला। इसमें संक्षिप्त देवनागरी पाठ का प्रकाशन हुआ। ये नाटक का एक लघु पाठ आया, देखिए, ऑटो बॉटलिंग के द्वारा, जिससे बंगाली पाठ की अपेक्षा से देवनागरी पाठ अधिक वर्णनीय बना। अब हमारे जो बाइबल की क्रिटिकल टेक्स्ट एडिशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, विदेशों में चल रही थी उस जमाने में, उन्होंने कैनन बनाया है, पाठ संपादन का एक अधिनियम बनाया है कि लॉन्गर वर्जन की अपेक्षा से जो शॉर्टर होता है वही मूलगामी होता है। तो अब तक तो बंगाली पाठ चलता था जो लॉन्गर वर्जन था, 230 श्लोक तक पहुंचा है। उसमें से ये देवनागरी वर्जन जो ऑटो बॉटलिंग ने निकाला, जिसमें लघु पाठ था, तो दुनिया के सामने एक नई विचारधारा आई कि भाई अधिनियम तो कह रहा है जिसमें लघु पाठ होता है वही मूलगामी होता है, वही कवि ने लिखा हो सकता है। यानी मतभेद शुरू हो गए। बाद में मॉनियर विलियम्स ने 1855 में देवनागरी पाठ को अधिक सुंदर बनाया, अधिक नई पांडुलिपियों का विनियोग किया। अंग्रेज लोग यहाँ से भारत देश से बहुत सारी नई नई पांडुलिपियां ले जा रहे थे, तो कुछ नई देवनागरी पांडुलिपियों के आधार पर उन्होंने एक क्रिटिकल एडिशन बनाई 55 में। किंतु उनके पास आप देखिए राघव भट्ट का पाठ नहीं था। प्रीफेस में लिखा है कि मैंने जब भी कोई पाठांतर का चयन किया है कि ये मूलगामी पाठ हो सकता है, तो कोई न कोई मैंने कमेंट्री का सहारा लिया है। अब उनके पास राघव भट्ट की कमेंट्री ही नहीं थी, अर्थद्योतनी का,
जो मूलतः देवनागरी पाठ पर थी। तो देवनागरी पाठ पर लिखी गई कमेंट्री नहीं थी, कुछ अन्य कमेंट्री जिसमें शंकर की रसचंद्रिका जो मैथिली पाठ पर थी इत्यादि का उपयोग करते हुए उन्होंने देवनागरी पाठ का संपादन किया। परिणाम ये हुआ है कि देवनागरी पाठ के नाम पर मॉनियर विलियम्स के एडिशन में आपको कहीं कहीं बंगाली पाठांतर भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो देवनागरी कमेंटेटर उनके सामने नहीं था। बाद में आए महामहोपाध्याय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, उन्होंने 1871 में देवनागरी पाठ को अधिक श्रद्धेय घोषित किया। देखिए, ये बंगाल के महामनीषी जिसके घर रामकृष्ण परमहंस जी संस्कृत नाटक देखने के लिए वहाँ खेला जाता था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर, तो रामकृष्ण परमहंस जी उनके घर जाते थे, उस जमाने के बड़े मनीषी थे। तो उन्होंने बंगाली होते हुए भी कह दिया कि देवनागरी पाठ ही कवि प्रणीत हो सकता है, अधिक श्रद्धेय वही है। यानी बंगाली पाठ को उन्होंने निरस्त करने की एक शुरुआत की। उन्होंने राजमुद्रा लगा दी कि कालिदास प्रणीत पाठ यदि होगा तो वो देवनागरी वाला ही होगा। बाद में पीएन पाटणकर जी, जिन्होंने 1898 में और बाद में दूसरा संस्करण निकला 1905 में शुद्धतर देवनागरी पाठ निकाला, द प्योरर देवनागरी रिसेंशन। मॉनियर विलियम्स की प्योर थी, अब आई हमारे सामने प्योरर, कंपैरेटिव डिग्री लगा दी उन्होंने। और मुझे ये भी कहना चाहिए कि इसी संस्था से भांडारकर साहब ने स्वयं कुछ नई पांडुलिपियाँ इंदौर भेजी थी। ये प्रोफेसर थे महाराष्ट्र के, काम कर रहे थे इंदौर में माधव कॉलेज में। तो भांडारकर इंस्टीट्यूट से कुछ नई अधिक श्रद्धेय पुरातन काल की पांडुलिपियाँ वहाँ पहुँचाई। काल बुरखाड़ का जर्मन अनुवाद भी भेजा गया। तो कुछ अच्छी नई सामग्री के आधार पर भांडारकर साहब चाहते थे कि कालिदास का ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है, संस्कृत पूरे साहित्य में शिरमोर है, तो उसकी तो जैसे महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनी उसी तरह से शाकुंतल की भी होनी चाहिए। ये भावना इस संस्था के दिल में थी, इसीलिए यहाँ से नई सामग्री वहाँ पहुँचाएगी। बढ़िया काम किया। तो पाटणकर, पीएन पाटणकर जो एडिशन निकली है देवनागरी की, जो प्योरर शुद्धतर देवनागरी वाचना का पाठ है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद दाक्षिणात्य पाठ 1876 में और बाद में 1904 में दाक्षिणात्य पाठ तेलुगु लिपि के साथ निकला, जिसमें काटयवेम भूप की कुमारगिरी राजिया भी छपी थी साथ में। और एक टी फोल्कोस नाम के अंग्रेज महाशय है जो मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस में आज GOML है, गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। वो GOML में जो शताधिक पांडुलिपियाँ थी साउथ इंडिया की, उसके आधार पर उन्होंने एक जबरदस्त काम किया है। जैसे भगीरथ ने आकाश गंगा पृथ्वी पर नीचे उतारी, उसी तरह से उन्होंने कालिदास कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वेरियस रीडिंग्स इन द मद्रास मैन्युस्क्रिप्ट, कालिदास की 7 कृतियों के जितने भी पाठ भेद हो सकते हैं उनका 4 भागों में प्रकाशन किया है, कंप्लीट। और कहा कि केवल मद्रास मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में जो पांडुलिपियां थी उसका विश्लेषण करके प्रत्येक उक्ति को, प्रत्येक श्लोक को, प्रत्येक लाइन को नंबरिंग दे दिया। इस एक पंक्ति के नीचे कितने कितने वेरिएंट्स कौन कौन सी पांडुलिपि में है, एक जबरदस्त काम किया। तो क्या हमें देखना है केवल एक रीजनल साउथ इंडिया में कौन से पाठ भेद चल रहे, उसी पर उनका फोकसिंग था। इस तरह का एक बड़ा काम हुआ है। बाद में शार्फे जी आए 1954 में। इसमें अभिज्ञान शाकुंतल की देवनागरी एवं बंगाली वाचनाओं के पाठ में जो संस्कृत प्राकृत गद्य वाक्य थे उनके पाठांतरों का संग्रह प्रस्तुत किया, और जो पद्य श्लोक थे उसके विषय में देवनागरी, दाक्षिणात्य, बंगाली और काश्मीरी वाचनाओं तथा अलंकार शास्त्र में उद्धृत हुए श्लोक, उन सबके पाठांतर प्रस्तुत किए। रिसेंशन, शाखा भेद, एक ही कृति, जैसे उत्तरी वाचना दक्षिणी वाचना महाभारत की क्रिटिकल एडिशन में प्रयुक्त की जाती हैं, शाखा भेद को अंग्रेजी में रिसेंशन कहते हैं। तो अब विकिपीडिया
कुछ कह रहा है। ये जो फुल्कोस ने किया काम, जे शार्फे ने काम किया, द कलेक्शन ऑफ ऑल known variants of a text is referred to as a variarium, namely a work of textual criticism whereby all variations and emendations are set side by side so that a reader can track how textual decisions have been made in the preparation of a text for publication. ऐसे भी एक पूर्व तैयारी होनी चाहिए रिसर्च टूल के रूप में। कालिदास लेक्सिकॉन भी हो सकता है या कंप्लीट वेरिएशंस वाला जो काम हुआ, ऐसा एक सभी पाठांतरों का ही केवल संग्रह प्रकाशित हो जाए, ऐसी भी एक धारणा बनी और ऐसा उपक्रम हुआ भी सही, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसमें मैथिली वाचना नहीं दिखाई रही है। आप देखिए, और उनमें भी आंशिक रूप से काम किया, कुछ गद्य वाक्यों के वैरायटी दे दी और कुछ लोगों के संदर्भ में बात हुई। तो ये वेरोरियम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ भारतीय पाठालोचना में ले आने की जरूरत बहुत है। भारतीय विद्वत्ता ने कभी ऐसा उपक्रम नहीं किया है अभी तक। अब मैथिली वाचना का देखिए, वो जो काम लेक्सिकॉन वाला हुआ वो 54 में 54 में हुआ, ये 57 में दरभंगा से मैथिली वाचना का प्रकाशन हुआ। रमानाथ झा जी ने मैथिली पांडुलिपियों के आधार पर मैथिली वाचना का समीक्षित पाठ संपादित किया। उन्होंने मैथिली पाठ पर शंकर एवं नरहरि की 2 टीकाएं भी प्रकाशित की, बहुत बढ़िया रसचंद्रिका नाम की कमेंट्री है। लेकिन डॉक्टर वी राघवन जी ने उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारने में असम्मति दिखाई। ऐसी कोई 5वीं शाखा नहीं हो सकती, 5वीं वाचना नहीं हो सकती। यद्यपि यह अभिप्राय नितांत गलत एवं अन्यायकारी सिद्ध हुआ। वी राघवन जैसे अत्यंत श्रद्धेय उस जमाने के सबसे बड़े स्कॉलर थे, साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने इस मैथिली वाचना पर क्रॉस लगा दिया। इसको सेपरेट रिसेंशन नहीं माननी चाहिए। उड़िया लिपि में लिखी हुई पांडुलिपियाँ अभी तक अज्ञात है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एक भी मुझे मिलती नहीं है। आएगा, मैं डिस्कस करूंगा। अभी किस क्रम में कैसी वाचनाएं चली वो हम पहले पब्लिकेशंस के संदर्भ में देख लेते हैं, बाद में हम उसमें जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। तो उड़िया पाठ जो अभी तक ध्यान में नहीं आता है, स्वतंत्र कोई उसका अस्तित्व है या नहीं वो मालूम नहीं, क्योंकि पांडुलिपियाँ कोई उपलब्ध नहीं करवाता है। पूर्वोत्तर भारत में बंगाल एवं मिथिला का पाठ बृहद आकार वाला है, ये भी मुझे बता देना चाहिए। देवनागरी और दाक्षिणात्य में ही लघु पाठ चलता है, लेकिन ऊपर की साइड पर जो चलता है पूर्वोत्तर भारत में वो लॉन्गर वर्जन है शाकुंतल का। अब कश्मीरी वाचना के संदर्भ में बात सोचनी है। कार्ल बुरखार्ड ने 1884 में शारदा भुर्ज पत्र पर, जिसका क्रमांक है 192, उसका रोमन स्क्रिप्ट में रूपांतरण कर दिया। वो जर्मनी में छपा, भारत में उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन भांडारकर इंस्टीट्यूट में आया होगा, इसीलिए भांडारकर जी ने वो कॉपी पीएन पाटणकर को इंदौर भेजी, जिसके आधार पर उन्होंने प्योरर देवनागरी बनाई। तो जिसमें अन्य पांडुलिपियों के पाठांतर नहीं थे, तुलनात्मक अभ्यास भी उन्होंने नहीं दिया है, केवल भुर्जपत्र वाली जो पांडुलिपि है, सारे संसार में एक ही पांडुलिपि है जो इस संस्था में है, उसका रोमन में रूपांतरण प्रकाशित हुआ। 1875 में ब्यूलर साहब उसको यहां से ले गए थे, 1875 में, और 1884 में उसका रोमन स्क्रिप्ट में रूपांतरण हुआ। बाद में डॉक्टर बेलवेलकर जी 1923 से 1965 तक उन्होंने इस भुर्ज पत्र वाली पांडुलिपि को ध्यान में रखते हुए 5 या 6 आर्टिकल लिखे हैं, रिसर्च आर्टिकल। उनमें से ज़्यादा तौर पर विदेशों में छपे हैं, भारत की विद्वत्ता के पास वो पहुँचे नहीं, और वो अपने स्वयं महाभारत क्रिटिकल एडिशन के काम में जुड़े हुए उन वर्षों में रहे। उनके दिवंगत हो जाने के बाद कश्मीरी वाचना का सो कॉल्ड पाठ
1965 में वी राघवन ने छपवाया साहित्य अकादमी से, दिल्ली से, जिसमें एक ही प्रतिलिपि का उपयोग दिखता है, उसमें प्रस्तावना या पाठभेद नहीं है। बेलवलकर जी के जीवन के आरंभ में जो सबसे पहला काम हुआ वो उत्तरामचरित की क्रिटिकल एडिशन का काम, वो भी बिगड़ गया क्योंकि उस समय पर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गए। तो उन्होंने पूरी सामग्री एक स्टीमर में रखी, दूसरी स्टीमर में वो बैठे, वो तो यहाँ आ गए, हमारा सद्भाग्य, लेकिन उत्तरामचरित की पांडुलिपि और वो सामग्री कभी भी भारत नहीं आई। ये सब उन्होंने अपनी प्रिफेस में लिखा है उत्तरामचरित। और उनके जीवन संध्या पर जो काम वो करना चाहते थे वो शाकुंतल था। ये जानने योग्य एक कहानी है और इस संस्था में उपस्थित होकर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं कई सालों से अकेला अकेला इस बारे में रोमांचित हो रहा हूँ। 5-6 आर्टिकल उन्होंने लिखे और जो भी संपादन किया वो वी राघवन ने बाद में उसको प्रकाशित किया। उसमें कोई मैन्युस्क्रिप्ट का क्रिटिकल एपरेटस जिसको कहते हैं वो कोई डेटा नहीं है, नो फुटनोट्स, नो इंट्रोडक्शन, नथिंग। और कोई अन्य लेख में उन्होंने लिख दिया है कि डॉक्टर सिल्वा लेवी के कहने से मैंने यहाँ पर नाति दीर्घ नाति लघु ऐसा एक पाठ पुरस्कृत किया है कश्मीरी वाचना के नाम पर। उनके नाम एडिटोरियल पर उनका नाम है कि एडिटर महाशय बेलवलकर साहब है, और वी राघवन ने जो प्रकाशित कर दिया है वो ठीक नहीं है। उसमें पूरा कश्मीरी पाठ का प्रतिबिंब नहीं मिलता है। लेकिन परीक्षण से हमको लगता है कि यह पाठ संपादन संदोहन पद्धति से किया गया है, यानी इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स पर वो काम किया है। कश्मीरी वाचना कहने के लिए डाल दिया है, लेकिन उसमें अनेक स्थान पर हम देवनागरी पाठ भेद भी देख सकते हैं और बंगाली पाठ भेद भी देख सकते हैं। वो प्योर कश्मीरी रिसेंशन नहीं है। यद्यपि पूरी भुर्जपत्र पर लिखी हुई शारदा मैन्यूस्क्रिप्ट उनके पास थी, लेकिन उन्होंने जब काम किया तो सिल्वा लेवी के कहने से उन्होंने अपनी एक मेधा से इक्लेक्टिक प्रिंसिपल का सहारा लेकर पाठ हमारे सामने रख दिया है, और हम लोग मानते हैं कि कश्मीरी वाचना मिल गई, यद्यपि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने इस दिशा में कुछ कार्य शुरू किया। मैं सबसे पहले प्रोफेसर सरोजा भाटे जी का हृदय से आभार मानता हूं, क्योंकि वो जब सेक्रेटरी थे मैंने पत्र लिखा और उन्होंने श्रीनंद बापट जी को आदेश दिया कि कहीं से ढूंढ निकालो। थोड़ी बहस भी हुई हमारे बीच में कि ऐसी कोई पांडुलिपि नहीं है, आप क्यों बार बार मांग रहे हैं। मुझे थोड़ा डांट भी दिया मैडम ने, हमने डांट सहन भी कर ली साहब। बाद में हम पीछे पड़ गए थे कि मांग रहे थे 192 नंबर की मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ। ब्यूलर साहब ने जो और कार्ल बुरखाडी जिसका रोमन स्क्रिप्ट में रूपांतरण किया है, वो रोमन रूपांतरण मुझे दिलवाने के लिए मैं माधव देशपांडे जी को भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ। उनकी सहायता से वो जर्मन से नहीं मिल पाई, अमेरिका से मिल पाई आ गई। बाद में ये जब मैंने यहाँ शुरू किया तो मैडम ने कहा कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास ऐसा कैसे बताते। क्योंकि वी राघवन जी ने न्यू कैटलॉगस कैटलॉगरम में ऐसा लिख दिया है कि 192 नंबर की भुर्जपत्र वाली पांडुलिपि अब BORI में नहीं है। इट इज लॉस्ट, इट इज इन प्रिंटेड फॉर्म। वी राघवन जी ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी रखी है, स्वाभाविक यहां से नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं बेलवलकर जी के चरणों में कि उन्होंने अपने एक अफलातून आर्टिकल निसर्ग कन्या शकुंतला, जो कालिदास ग्रंथावली सीताराम चतुर्वेदी ने हिंदी अनुवाद के साथ निकाली है अलीगढ़ से, उसमें आर्टिकल लिखा है। लगता है देखने से कि यह कोई लिटरेरी एप्रिसिएशन वाला आर्टिकल होगा, निसर्ग कन्या शकुंतला। उसमें टेक्सुअल क्रिटिसिज्म की बात है और बड़ा गंभीर आर्टिकल है। वो 1965 में छपा है। भारत के किसी विद्वान ने पढ़ने की कोशिश नहीं की, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी फुटनोट में बेलवलकर जी ने लिख दिया है कि मैंने ये 192 नंबर की मैन्युस्क्रिप्ट BORI में जमा करवा दी है। वहां पर उन्होंने उसका जिक्र किया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि उनके आर्टिकल शुरू होते हैं 1923 से।
बेलवलकर जी ने इस बुर्ज पत्र के आधार पर जो भी आर्टिकल लिखे उसका आरंभ कहाँ से होता है? 1923 से लेकर 65 तक के आर्टिकल में उस पांडुलिपि का उपयोग उन्होंने किया है। और 65 में वो लिख रहे हैं कि मैंने ये पांडुलिपि यहाँ जमा करवा दी। उसके बीच में पीके गोडे जी ने यहाँ का कैटलॉगिंग किया होगा, इसीलिए वो पांडुलिपि का निर्देश नहीं था, इसीलिए राघवन जी ने लिख दिया कि नाउ इट इज लॉस्ट। अब देखिए 50 साल से अधिक वर्ष पर्यंत बेलवलकर जी के पास ये पांडुलिपि रही होगी, ऐसी मैं धारणा बनाता हूं। और बाद में क्योंकि कैटलॉगरम में एक बार निकल गया कि ये नहीं है अब, इसलिए किसी ने उसको मांगा नहीं। लेकिन हमारा भाग्य कि हमने वो अलीगढ़ मुस्लिम वाला पढ़ लिया और मंगवाया। बाद में सरोजा भाटे जी ने और कोशिश की, 1.5 महीने के बाद हमारे पास आया कि आप 15,000 का डीडी भेज दीजिए, आपको मिल जाएगी। तो श्रीनंद बापट ने फोटोग्राफी करके हमको वो भेज दी और हमने उसका क्रिटिकल एडिशन बना दिया है। केवल उसमें बुर्ज पत्र वाली नहीं है, और 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोडेलियन से हमने मंगवाई, एक बुर्ज पत्र, 3 पेपर मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम बोडेलियन यूनिवर्सिटी, बोडेलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड, और 5वीं हमने आलम इकबाल लाइब्रेरी श्रीनगर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। कुल मिला के 5 शारदा पांडुलिपियों के आधार पर मैंने कश्मीरी वाचना का संपादन किया, जो आज राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन दिल्ली से छप रहा है, 1-2 महीने में बाहर आ जाएगा। अब 4 समीक्षित आवृत्तियों का प्रकाशन हुआ। अद्यावधि बंगाली, देवनागरी, मैथिली तथा कश्मीरी वाचनाओं की समीक्षित आवृत्तियों का प्रकाशन हो चुका है। दाक्षिणात्य का अभी भी बाकी है। आप देखिए 225 वर्ष के बाद भी साउथ इंडियन रिसेंशन हमारे पास नहीं है। दक्षिण भारत में शाकुंतल की कौन सी धारा चल रही है, कौन से पाठ भेद हैं, उसकी क्रिटिकल एडिशन नहीं है। हम संतुष्ट है काटे एवं भूप की जो कमेंट्री के साथ छपी है उससे संतुष्ट है। तो इनमें किसी एक प्रादेशिक लिपि में लिखी हुई पांडुलिपियां ही एकत्र करके, अब देखिए यहां से टेक्सुअल क्रिटिसिज्म के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। अभी तक के विद्वानों ने क्या किया, किसी एक प्रदेश में से केवल बंगाली पांडुलिपियां ले ली, केवल मैथिली पांडुलिपियां ले ली, किसी एक प्रदेश की पांडुलिपियां लेकर उसके रिसेंशन निकाल दी। यानी पूरे भारतवर्ष की सभी लिपियों में लिखी हुई सभी पांडुलिपियां एकत्र करके, जैसे रामायण महाभारत का काम हुआ उस तरीके का, उस ढंग से, उस प्रक्रिया से इस अभिज्ञान शाकुंतल का पाठ संपादन नहीं हुआ है। केवल प्रादेशिक लिपियों में लिखी हुई पांडुलिपियां लेकर विद्वान काम करते रहे हैं और उसको वाचना का भी नाम दे दिया कि रिसेंशन है। अब वाचना शब्द का प्रयोग कब होता है उस पर भी सोचना चाहिए, किसको रिसेंशन कहेंगे। ये तो लिपि भेद से वाचना भेद बोल रहे हैं ये लोग। इनमें विविध दोष या समस्याएं समाहित है। एक तो भारत की सभी प्रादेशिक लिपियों में लिखी पांडुलिपियों को एकत्र करके वाचना निर्धारण नहीं हुआ है, और उच्चतर समीक्षा का कार्य भी सर्वांश में नहीं हुआ है। ये तो सब लोअर क्रिटिसिज्म वाली बात है। पांडुलिपियां एकत्र कर ली, लिपियों का लिप्यंतरण कर लिया हमने, वंश वृक्ष बना लिया, क्रिटिकल एपरेटस डाल दिया, फुटनोट में पाठभेद जो हम मान्य नहीं करते उसको रख दिया हमने। तो ये लोअर क्रिटिसिज्म से अब तक काम होता रहा है। हायर क्रिटिसिज्म वाली चर्चा केवल एवं केवल बेलवलकर जी के हाथ से हुई है। सर जरा बता दीजिए लोअर क्रिटिसिज्म क्या है और हायर क्रिटिसिज्म क्या है, थोड़े संक्षेप। आप जानते हैं आप सब लोग जानते हैं क्या? आप जानते हैं ऐसा मानकर मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। जानना चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ तो चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो मालूम नहीं है, केवल शब्द सुनने में आते हैं। थोड़ा संक्षेप। साहब आप ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती हो तो मुझे करेक्ट कीजिए आप। मैं जो भी जानता हूँ वो यहीं के 2 मनीषी के जो भी लिखे हुए, एक तो प्रोलोगोमेना टू महाभारत में सुक्थनकर साहब जी ने जो लिखा है वो, बाद में 54 में इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन टेक्सुअल क्रिटिसिज्म बाय SM कतरे जी, उन्होंने जो भी मार्गदर्शन दिया है वो अद्यावधि सारे देश में चल रहा है। उसके आधार पर सबसे पहले ह्यूरिस्टिक्स होता है
अनुसंधान जिसको कहते हैं, यानी आपको सबसे पहले पांडुलिपियों का एकत्रीकरण करना है, कैटलॉग देखना है, उसका संतुलन पत्रिका कोलेशन शीट्स बनानी है, कोलेशन शीट्स का अभ्यास करके बार बार साम्य वैषम्य के आधार पर आपको स्टीमा कोडिकम बनाना है, वंश वृक्ष बनाना है कि किस तरह से सारे देश में एक ही ग्रंथ की अलग अलग धाराएं प्रवर्तित हुई हैं, फैल चुकी हैं। वंश वृक्ष के बाद आपको किस रिसेंशन को ज़्यादा श्रद्धेय मानते हैं, अधिक पुरातन मानते हैं। ये प्रोसेस इसीलिए होती हैं कि पाठालोचना का जो परम कर्तव्य है, टारगेट है, वो प्राचीन से प्राचीनतर एवं प्राचीनतर से प्राचीनतम और हो सके तो मूल कवि के घर जाने की प्रक्रिया है। आज मिलने वाली पांडुलिपि को लेकर हमें अतीत में जाना है कि प्राचीनतर काल में क्या था, प्राचीनतम में क्या था, और कवि ने अपने हाथ से क्या पाठ लिखा था, शास्त्रकार ने क्या लिखा था, वो ढूंढ निकालना, उसकी कोशिश के लिए ये पाठालोचना होती है। ये अनुसंधान में यहाँ तक होता है। बाद में जो दूसरा होता है वो संशोधन कहते हैं या रिसेंशियो कहते हैं, जिसमें वाचना निर्धारण होता है। वंश वृक्ष बनने के बाद कितनी शाखाओं में ये ग्रंथ चल रहा है इस देश में, जैसे रामायण महाभारत में उत्तरी वाचना, दक्षिणी वाचना 2 नाम दिए गए हैं। तो उत्तरी वाचना को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि उसमें कम प्रक्षिप्त दिखाई पड़ते हैं, साउथ इंडिया में अधिक है। रामायण में उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है। रामायण में दाक्षिणात्य वाचना को अधिक श्रद्धेय मानेगी क्योंकि उसमें आर्ष रूप अधिक सुरक्षित रहे हैं, और उत्तर में सरलीकरण के आशय से या पाणिनि व्याकरण के अनुरूप बनाने के लिए मॉडर्नाइज फॉर्मेट में टेक्स्ट मिलती हैं। तो इस तरह से द्वितीय चरण में हमें वाचना निर्धारण करना है, और थर्ड स्टेप में एमेंडेशन, पाठ सुधारणा का काम करना है। लेकिन पाठ सुधारणा के बारे में वीएस सुक्थंकर जी आपने हमको कह रखा है कि बड़ी सावधानी रखनी है। जहाँ भी इच्छा होगी आपने पाठ बदल दिया, वो आप नहीं कर सकते हैं। अगतिकतया उपलब्ध पाठ वेदों में से कहीं से कोई चारा नहीं रहता है। किसी भी तरह से आपको सुसंगत, प्रकरण संगत पाठ नहीं मिलता है, तभी जाकर आप कुछ उसमें सुधार करेंगे। केवल आदि पर्व का एक उदाहरण मैं दे दूं आपको, जिसका संपादन उनके हाथ से हुआ है। 8000 या 8500 करीब का वो कलेवर है आदि पर्व का। तो 8000 श्लोकों में से केवल 36 जगह, केवल 36 स्थान पर उन्होंने नया पाठ दिया है, स्वकल्पित पाठ, रिकंस्ट्रक्टेड पाठ दिया है। 8000 श्लोक में से केवल 36 स्थान पर ही उन्होंने अपनी मति से कुछ नया सुझाव दिया है। ये पाठ सुधारणा वाला जो तृतीय चरण है वो बड़ी सावधानी से हमें उपयोग में लेना है। ये 3 को लोअर क्रिटिसिज्म कहते हैं, और अंतिम चरण होता है हायर क्रिटिसिज्म। हायर क्रिटिसिज्म को मैं पहले एक ही शब्द से आपको उसकी जो मेरे मन में कॉन्सेप्ट है, विभावना है, वो ऐसी हैं कि पांडुलिपियों के साक्ष्य से बाहर निकलकर आपको सोचना है। अभी तक लोअर क्रिटिसिज्म जो होता रहता है वो केवल पांडुलिपियों पर आश्रित होता है। पांडुलिपियों में क्या प्रतिबिंबित हुआ है उसके आधार पर हम लोअर क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन जब पाठ संपादित हो जाता है तब पांडुलिपियों के बाहर निकलकर कोई अन्य प्रमाण से हम उसको सिद्ध करेंगे कि कवि का कल्पित या कवि का अभिष्ट पाठ, संकल्पित पाठ, इंटेंडेड टेक्स्ट ऐसी रही होगी। वो हायर क्रिटिसिज्म का संदर्भ होता है। तो ये नटशेल में आपको मैंने बता दिया। अब इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स से बने देवनागरी संस्करण, जिसके लिए मैंने संदोहन पद्धति शब्द का प्रयोग किया है, वो भी महुलकर साहब, मैं बता दूं कि ये शब्द संदोहन पद्धति शब्द मैंने जो कॉइन किया उसके पीछे भी सुक्थंकर साहब का ही जो लिखा हुआ पाठ है वो मेरे ध्यान में है। उन्होंने कहा कि हम जो क्रिटिकल एडिशन दे रहे हैं, आदि पर्व की प्रेफेस प्रोलोगोमेनाटू में महाभारत में लिखा है उन्होंने कि हम जो पाठ दे रहे हैं क्रिटिकल एडिशन के नाम पर, आप ऐसा मत मानिए कि यही व्यास ने लिखा था, यही व्यास ने गणपति से लिखवाया था, वो पाठ हमने ढूंढ निकाला है। डोंट बिलीव,
ये ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो उन्होंने अपने काम को समझाने के लिए नीलकंठ, कमेंटेटर नीलकंठ का एक उदाहरण दिया है। बहुन समाहृत्य विभिन्न देशान कोशान, अलग अलग प्रदेशों के बहुत मैन्युस्क्रिप्ट के बंडल्स हमने कलेक्ट किए हैं। नीलकंठ लिखते हैं बहुन समाहृत्य विभिन्न देशान कोशान विनिश्चित्य तो पाठम अग्र्यम। कौन से पांडुलिपि के अंदर कौन सा पाठ अधिक सुंदर है, अधिक एप्रोप्रिएट है, अधिक व्याकरण सम्मत है, इत्यादि इत्यादि। विनिश्चित्य तो पाठम अग्र्यम, अग्रगण्य पाठ का हमने पहले चयन कर लिया है। उसके बाद वो चयनित की गई टेक्स्ट पर हम वितन्यते भारत भावदीपः, ये भारत भावदीप नाम की जो कमेंट्री में लिख रहा हूं, वो गुणोपसंहार न्याय शब्द रखा है उन्होंने। अच्छा अच्छा पाठ जो हमको जहां से मिला है उसको लेकर चुन चुन कर ये क्रिटिकल एडिशन बनाई है। इस गुणोपसंहार न्याय का मैंने एक और पैराफ्रेज कर दिया है, संदोहन पद्धति। ये जो देवनागरी पाठ का संपादन करने वाले हमारे प्रोफेसर्स लोग हैं, पुरोगामी अध्यापक हैं, जिसमें मोनिर विलियम्स भी आते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि राघव भट्ट की कमेंट्री नहीं थी जो एकमात्र ऑथेंटिक है देवनागरी पाठ पर, उनके सामने प्रकाशित ही नहीं हुई थी वो उस समय पर। पीएन पाटणकर जी ने, जिन्होंने क्लेम किया है कि मैं प्योरर टेक्स्ट दे रहा हूं, उन्होंने भी जो कार्ल बुरखार्ड ने रोमन स्क्रिप्ट में रूपांतर किया था ना कश्मीरी पाठ का, उसके आधार पर देवनागरी पाठ का शुद्धिकरण किया है। यानी देवनागरी पाठ के अंदर बीच बीच में कश्मीरी पाठ घुस गए हैं। द प्योरर रिसेंशन अब देवनागरी वो जो लिखा है उसमें ये कश्मीरी पाठ प्रविष्ट हो गए हैं। कुछ कुछ स्थान पर बंगाली पाठ भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये संदोहन पद्धति हुई। जैसे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, वो ये दुग्धा गोपालन बन के लोग देवनागरी पाठ को निश्चित कर रहे हैं। बाद में एम आर काले साहब, शारदा रंजन राय, उन लोगों ने भी ये वर्षों में काम किया। गजेंद्र गडकर जी आए, गौरीनाथ शास्त्री, वंस अगेन साहित्य अकादमी का दूसरा प्रकाशन शकुंतल का, उसका टाइटल रखा है अभिज्ञान शकुंतलम, जो मूलतः बंगाली पाठ का शीर्षक है। इस नाटक के 3 शीर्षक चलते हैं। हाँ, आप एक ही जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, लेकिन 3 उसके शीर्षक है एक ही नाटक के। बाद में आए महामनीषी प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। मैं आज सभी प्रोफेसर्स का नाम देकर बोल रहा हूँ, सभी मेरे लिए प्रणम्य है, सभी श्रद्धा के योग्य हैं। फिर भी आलोचना करनी भी जरूरी है, इसीलिए कोई ऐसा ना माने कि मैं किसी के नाम पर कोई गालियाँ बोल रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी साधना के सामने मैंने तो कुछ परिश्रम नहीं किया है। फिर भी उनके मत से मैं सहमत नहीं हूँ, यही मेरा कहना है। और उसका कारण है क्यों सहमत नहीं हूँ, मैं केवल ऑब्जेक्टिव होकर बोल रहा हूँ। तो संदोहन पद्धति में आत्मलक्षिता प्रविष्ट होती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। मुझे अच्छा लगा। बहुलकर साहब EIOC में कभी ऐसा भी मैंने सुना है, ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में ऑडियंस पूरा शांति से सुन रहा था, मैडम जानकी बोल रहे थे, पूरा ऑडियंस उसके प्रति, सीनियर प्रोफेसर थी। मैं जब सोती हूं तो कालिदास मेरे कान में आकर कुछ कह जाते हैं, कालिदास मुझसे बात करते हैं। बड़ी गंभीरता से लोग सुन रहे थे। अरे मैडम, कालिदास क्यों अकेले आपसे बात करेंगे, हमसे भी बात करेंगे कभी आके कि मैंने वसंत भट्ट ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा लिखा था। ये सब्जेक्टिविटी है। मुझे लगता है मेरी कालिदास से बात हो गई है, इट्स फाइन टू से हाँ नरेंद्र मोदी से हॉटलाइन पर बात हो गई, लेकिन कालिदास से बात करना तो मुश्किल है ना। कोई भी कैसे क्लेम करेगा कि मूल कवि से हमारी बात हो गई है, इसीलिए ये पाठ है। तो दिस इज सब्जेक्टिविटी। हमारे बड़े बड़े मनीषियों ने ऐसे शब्दों से ऐसे पाठ संपादन करने का कार्य किया है। बड़ी दर्दजनक स्थिति है, और हम लोग पूरी श्रद्धा से रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए उनकी बात भी मान लेते हैं।
तो संदोहन पद्धति में आत्मलक्षिता प्रविष्ट होती है, जिसके कारण ऐसी आवृत्ति सर्वसम्मत नहीं होती है। उनके जीवन काल में कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन बाद में कोई मान्य भी नहीं करेगा। एवंच इन पाठ संपादकों में से किसी को भी बृहद देवनागरी पाठ वाली पांडुलिपियों की जानकारी नहीं है। आज मैं इस पुण्य भूमि में जाहिर करता हूँ कि मेरे पास लॉन्गर वर्जन वाली बृहद देवनागरी वाचना की 6 मैन्यूस्क्रिप्ट है। एक भी पाठ संपादन को इसका मालूम ही नहीं है कि एक लॉन्गर वर्जन देवनागरी स्क्रिप्ट में भी चल रहा है, जिसमें कश्मीरी पाठ प्रतिबिंबित हुआ है, जो मुझे पाटन के हेमचंद्राचार्य जी के जैन ज्ञान मंदिर से प्राप्त हुई पांडुलिपि में मिलता है। तो देवनागरी का जो शॉर्टर वर्जन अभी तक के जो भी विद्वानों ने निकाला है, जिसमें ये सब नाम आप पढ़ रहे हैं, काले साहब है, शारदा रंजन राय है, पाटणकर जी है, दुनिया भर के लोग हैं उसमें, किसी के पास ये लॉन्गर वर्जन वाली पहुंची नहीं। और 6 मुझे मिली है तो और भी मिल सकती है। काशी के मूर्धन्य पंडित, इनसे हमारी हर 15 दिन बात होती है। यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ, रेवा प्रसाद जी मेरे लिए प्रतिपक्ष है, मैं उनके लिए प्रतिपक्ष बन गया हूँ। हर 15 दिन एक फोन निश्चित आता है, 15-20 मिनट हर रोज हमारी बात होती रहती है। और गौरीनाथ शास्त्री जी, कालिदास ग्रंथावली 3 बार उन्होंने संपादित की। उसमें अभिज्ञान शाकुंतल के देवनागरी पाठ को मान्य रखा गया है। एशियाटिक सोसाइटी की G340 नंबर की पांडुलिपि, एक ही पांडुलिपि का उन्होंने विनियोग किया है। और प्रीफेस में लिखा है भूयसी मातृकाश्च। और भी बहुत सारी पांडुलिपियां मैंने देखी है, ये नहीं चलेगा। 10 को भी बहुत सारी कह सकते हैं, 100 को भी कह सकते हैं, हाउ मैनी। और उसका विवरण दो हमको, किस संग्रहालय की कौन से नंबर की पांडुलिपि रेवा प्रसाद जी ने देखी है, नंबर दिखाओ हमको। जो भी उनकी प्रीफेस में दिखाई पड़ता है, आप घर जाके मेरी बात चेक कर सकते हैं। सब पब्लिश्ड आवृत्तियां लेकर बैठे हैं। केवल एशियाटिक सोसाइटी की 340 नंबर की एक पांडुलिपि उन्होंने देखी है, औरों के लिए लिख दिया है भूयसी मातृका। तो ये ठीक नहीं है। पब्लिश्ड एडिशंस के आधार पर हम आज नक्की कर ले कि यही कालिदास ने लिखा होगा, तो वो बड़ी गलती होगी। संदोहन पद्धति से किया हुआ उनका पाठ, जिसमें भी बंगाली पाठ घुस गए हैं बीच बीच में, और एक पराक्रम भी उन्होंने कर लिया है, जो नांदी पद्य है। देखिए, ये नाटक ऐसा है जिसके शीर्षक से लेकर भरत वाक्य पर्यंत का एक भी वाक्य सलामत नहीं है। 2000 वर्ष पहले लिखा गया यह नाटक, जिसके शीर्षक से लेकर भरत वाक्य पर्यंत एक भी वाक्य सलामत नहीं है, यानी उसमें पाठभेद न हो ऐसा नहीं है, सर्वत्र पाठभेद है। इट्स ए मोस्ट चैलेंजिंग टास्क टू एडिट अभिज्ञान शाकुंतलम, मोस्ट चैलेंजिंग। महाभारत 1 लाख श्लोक वाला था, वो इयत्ता में सबसे बड़ा ग्रंथ था। ये पाठभेदों की संख्या में इतना है। ये भी एक महाकार्य है। ये जब 225 साल का हम ये पूरा इतिहास देखते हैं, तब समझ में आता है कि क्या हुआ है। सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ कृति, लेकिन भारत की विद्वत्ता अभी तक सोई हुई है, सोती है। रेवा प्रसाद जी ने क्या किया नांदी पद्य में, प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः, या सृष्टु सृष्टिराद्य वहति विधिहुतम वाला श्लोक। भगवान शिव की 8 प्रत्यक्ष मूर्तियां, उनसे प्रपन्न युक्त ईशः शिवः वह युष्मान प्रेक्षकान सामाजिकान अवतु रक्षतु। वो कहते हैं कि एक दूसरा पाठभेद है प्रसन्न भी है, जो बंगाली में, मैथिली में और कश्मीरी में चलता है। प्रत्यक्षाभिः प्रसन्नस्तनुभिरवतु वस्ता, भगवान प्रसन्न हुए हैं मनुष्य लोक पर, जीवलोक पर, और हमारी सुविधा के लिए जल वायु इत्यादि सब हमको दिए हैं। भगवान शिव की ये प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं, अग्निमयी, जलमयी, वायुमयी मूर्ति। तो प्रसन्न भी है, प्रपन्न भी है। रेवा प्रसाद जी कहते हैं कि प्रपन्न तो उसमें तो प्रपत्ति है, प्रपत्ति तो भक्त में होती है,
ये ठीक नहीं है। दोनों में से एक भी पाठ वेद में मानने को तैयार नहीं हूं। न प्रसन्न लिखा है कालिदास ने, न प्रपन्न लिखा है। तो क्या लिखा है? प्रपन्नान भक्तान वह युष्मान सामाजिकान अवतु। जो प्रथमांत पद था प्रसन्न या प्रपन्न, उसको द्वितीय बहुवचन में रूपांतरित कर दिया और वह का विशेषण बना दिया। प्रपन्नान वह अर्थात प्रेक्षकान अवतु सह ईशः शंकरः। ऐसे नए पाठांतर भी उन्होंने उद्भावित किए हैं, स्वकल्पित। अब पाठालोचना का तो ये सबसे बड़ा कड़ा नियम है कि आप जो भी करें उसको मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस का समर्थन चाहिए। कम से कम एक मैन्युस्क्रिप्ट में तो ऐसा पाठ होना ही चाहिए। ये डिसिप्लिन लेकर हमको पाठ संपादन करना है। बिना पांडुलिपि के आधार पर हम कोई नया पाठ नहीं दे सकते हैं। और जो गौरीनाथ शास्त्री ने किया है काम, जो भी साहित्य अकादमी दिल्ली से निकला है, बड़े प्रकाशन की संस्था से निकलता है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है कि यहां से निकला है तो वो पाठ ठीक ही होगा। तो गौरीनाथ जी ने जो काम किया है उसकी प्रेफेस देखते ही निराशा होती है। एक भी पांडुलिपि उन्होंने देखी भी नहीं है और उन्होंने शायद कुछ काम भी नहीं किया है। उनकी एक पटवी शिष्या थी जिन्होंने जो कुछ काम किया उन्होंने देख लिया, वो छप गया। तो शिष्या ने किया हुआ काम जिसकी क्रेडिट गुरु जी को मिली है, उस गुरु ने एक भी नई देवनागरी पांडुलिपि देखी नहीं है। यह आधुनिक समय में हुआ काम है। देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। सभी संपादनों में मुख्य रूप से 5 दोष सुव्याप्त है। सभी संपादकों ने पांडुलिपियों का व्यापक सर्वेक्षण ही नहीं किया। यदि उनका सर्वेक्षण व्यापक होता तो ये बृहद देवनागरी मिल जाती, तो देवनागरी का ठीक पाठ हो सकता था। कहीं पर भी वाचना का शास्त्रीय या वैज्ञानिक लक्षण घटित नहीं होता है। कहने के लिए बंगाली वाचना है, कहने के लिए मैथिली वाचना है, लेकिन रिसेंशन कहने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ की अपेक्षा है। वो क्या है वो दिखाऊंगा मैं आपको। पाठ संपादन की प्रक्रिया में संदोहन पद्धति यानी इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स का कब विनियोग में लेना है उसका विचार किसी ने नहीं किया है। सबने मर्यादित सामग्री से ही सीधे ही कवि प्रणीत मौलिक पाठ को निर्धारित करने का दावा किया है। मैं कहूँगा साहस किया है। 5-25 पांडुलिपि मिल गई, उसके आधार पर मैं कहने लगा कि मैंने कवि ने जो लिखा था वो ढूंढ निकाला है। ये बहुत दर्दजनक स्थिति है। अभिज्ञान शाकुंतल नाट्यकृति होते हुए भी किसी भी पाठ संपादक ने आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों में संचरित हुए पाठ को रंगावृत्ति के पाठ के रूप में देखा ही नहीं है। ये स्टेज स्क्रिप्ट हो सकती है ऐसी धारणा तक भी किसी ने नहीं की है। पांडुलिपि में जो दिखाई पड़ता है उसको कवि प्रणीत पाठ मान लेकर उसका संपादन कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए तो सोचना था कि ये नाटक है भैया। एक दूसरी परंपरा भी हो सकती है, किसी नटमंडली की ये पांडुलिपि होगी। यस, अब समझे, किसी ने यह संभावना भी नहीं सोची है। तो 225 वर्षों की प्रयासों की समीक्षा, शाकुंतल की पाठालोचना का सही आरंभ कब हुआ? तो एक तो पीएन पाटनकर जी को ये यश देना पड़ेगा। 1898 में सही प्रकार का समीक्षित पाठ संपादन हुआ। देखिए ये सब काम महाभारत की क्रिटिकल एडिशन होने से पहले हुआ है। लेकिन उन्होंने कश्मीरी वाचना का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पहचाना। ये बड़ी कठिनाई रही। इक्लेक्टिक आवृत्ति बन गई उनके हाथ से और बृहद देवनागरी से वो भी अज्ञात रहे। बहुलकर साहब, मैं ये भी अब यहाँ इस पुण्य भूमि में बोल दूं, एक बृहद यानी लॉन्गर वर्जन वाली देवनागरी स्क्रिप्ट इसी पुणे में से मिली है। बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज जहां मुझे ठहराया गया है, कल जाके मैं दरवाजे पर प्रणाम करके आया, वहाँ के हिस्ट्री के प्रोफेसर बलवंत राय कल्याण राय ठाकुर जो हमारे गुजरात के थे, उन्होंने फर्स्ट ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में 1919 में एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, द टेक्स्ट ऑफ शकुंतला। फर्स्ट ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस। हिस्ट्री का प्रोफेसर, संस्कृत का नहीं था और गुजराती का पोएट था, सोनेट का भी लिखने वाले थे हमारे
जो गुजराती में लिखते थे तो ब क ठा ऐसा लिखते थे, पूरा नाम नहीं लिखते थे, ब क ठा। गुजरात में बकठा नाम से वो जाने जाते हैं। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर ने द टेक्स्ट ऑफ शकुंतला नाम का एक छोटा सा निबंध, छोटा सा यानी 50 पान तो है ही वो रिसर्च आर्टिकल में, वो प्रस्तुत किया और अपूर्ण सामग्री से बिना पांडुलिपियों से संपादन करने का प्रयास शुरू कर दिया उन्होंने। कहा भाई चलेगा नहीं, जल्दी करो, शाकुंतल की टेक्स्ट निश्चित होनी चाहिए। वो 1919 में उन्होंने पहला काम एक पराक्रम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिलेक्टिव प्रिंसिपल्स का मार्ग पुरस्कृत किया। महाभारत की समीक्षित आवृत्ति बनने से पहले का यह युग है, यह हमें ध्यान में रखना है कि पहले क्या हो रहा था। देखिए ये उनके शब्द हैं, इवन अवर ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द प्ले आर वेरी मॉडर्न। इफ वी लीव द मैटर एंटायरली टू द ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ मियर संस्कृत स्कॉलर्स, ये हमारे लिए है कि संस्कृत के पंडित लोग कैसा काम करते हैं। If we leave the matter entirely to the orthodox methods of the mere Sanskrit scholars, we can advance no further than 3 Shakuntalas, Devanagari, Bengali and the Kashmiri. Cultured humanity cannot tolerate 3 divergent Shakuntala or even 2. 2 तरह का शाकुंतल भी क्यों होगा, एक ही होना चाहिए। It must have one single definitive Shakuntala accepted to all competent judges. And above all, in Kalidas we are dealing with an author about whom we can assert categorically that if we can only discover from among the variants before us that one which is unquestionably the beautiful, the most pregnant, the most appropriate and the most dramatic, that one is also unquestionably what Kalidas must have written and others. जो व्यंजनापूर्ण हो, जो सबसे अधिक उपयुक्त हो, सुसंगत हो, जो अधिक नाट्यक्षम हो, जो कालिदास ने ही लिखा हो, ऐसा पाठ निश्चित कर लेना चाहिए। जो भी अवेलेबल पाठ वेद हैं उनमें से ये हम निश्चित कर ले। This at any rate is the principle of selective comparison I advocate. उस समय पर इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स वाला शब्द, टेक्निकल शब्द नहीं था, इसलिए सिलेक्टिव प्रिंसिपल्स शब्द का प्रयोग उन्होंने 1919 में किया है कि इस तरह से पाठ संपादन होना चाहिए। बेलवलकर जी ने जो भी काम किया है उसका अंगुली निर्देश में कर दूं आपको। देवनागरी पाठ में समय सूचक रंग सूचनाओं में विसंगति है, ये उन्होंने दिखाया कि जो शाकुंतल में प्रसंगावली चल रही है उसमें समय विषयक जो सूचनाएं मिलती है वो सुसंगत बैठती नहीं है, उसकी ओर उन्होंने पहला ध्यान हमारा आकृष्ट किया है। और ये भी बताया कि कश्मीर की जो भुर्जपत्र वाली पांडुलिपि है उसमें मध्याह्न का समय, सायंकाल का समय और रजनी यानी रात्रि का समय, तीसरा अंक जो है जिसमें दुष्यंत शकुंतला का गांधर्व विवाह होता है, उसमें तीनों समय की रंग सूचनाएं मिलती है। ये बात की ओर हमारा ध्यान बेलवलकर साहब ने आकृष्ट किया था सबसे पहले। बाद में चतुर्थ अंक के अंदर जो चक्रवाकी से जुड़ी हुई कुछ गाथाएं आती हैं, उस गाथाओं का न होना वो भी ध्यानास्पद है, वो बताया हमको उन्होंने। और एक ट्रांसक्रिप्शनल प्रोबेबिलिटी के रूप में एक उदाहरण उन्होंने दे रखा है कि बाणासन हस्ता भी यवनी भी, इन शब्दों का प्रतिलिपिकरण के दौरान हृदय निहित प्रियजनों में कैसे रूपांतरण हो जाता है, वो सटीक रूप से बताया है कि मूल में ऐसा था, उसमें से ऐसा कैसे बन जाता है, लिपिकारों के प्रमाद से कैसे कैसे पाठ बदलता जाता है और हृदय निहित प्रियजन में वो परिवर्तित हो जाता है। ये बढ़िया आर्टिकल है। तो कश्मीरी के सप्तमांग का प्रवेशक, जिसमें नाकलासिका स्वर्गलोक की 2 नृत्यांगनाएं आकर मंच पर नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, जो केवल कश्मीरी पाठ में ही मिलता है, वो मौलिक बताया है बेलवलकर जी ने कि सप्तम अंक का प्रवेशक और किसी में सुरक्षित नहीं है, केवल कश्मीरी भुर्जपत्र वाले में है, तो वो मौलिक हो सकता है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। और भुर्जपत्र वाली जो पांडुलिपि है 192, उसको उन्होंने आर्चिटाइप मूलादर्श प्रति भी घोषित कर दी है। लेकिन डॉक्टर सिल्वा लेवी इतना होने के बाद भी 6 आर्टिकल में कश्मीरी पाठ का ही वो
आरात्रिकम कर रहे थे कि यही ठीक है, यही अधिक श्रद्धेय है, लेकिन जब उन्होंने खुद काम किया तो सिल्वा लेवी से प्रेरित होकर नाती दीर्घ नाती लघु पाठ, ऐसा इक्लेक्टिक प्रिंसिपल से कुछ ऐसा पाठ बना दिया जिसमें देवनागरी भी मिल जाएगा आपको, बीच बीच में बंगाली पाठ भी मिल जाएंगे आपको। यानी रियल साइंस में कश्मीरी वाचना का काम बेलवलकर जी के हाथ से भी नहीं हो पाया। अब ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए दिलीप कुमार कांजीलाल क्या लिखते हैं? इन प्रेजेंटिंग एन एक्सेप्टेबल टेक्स्ट मेनली फॉर द स्टूडेंट्स, the great humanist and reformer achieved the greater portion of the third act as undelectable and blustered the cause of the retraced text accepted by Raghav Bhatt. देखिए, दिलीप कुमार कांजीलाल कहते कि कोई संस्कृत का विद्वान नहीं था, ये समाज सुधारक व्यक्ति थे, विधवा विवाह की बात करने वाले थे, मानवतावादी थे। उन्होंने कहा है हमको कि बंगाली पाठ को छोड़ दीजिए और देवनागरी पाठ को। इसमें स्तुति गर्भित निंदा है। ये जो शब्द है ना, ग्रेट ह्यूमनिस्ट एंड रिफॉर्मर, ये संस्कृत का स्कॉलर नहीं मानते दिलीप कुमार कांजीलाल। तो उनके कहने से क्या हो गया? so much that the whole literary world almost wheeled around Ishwar Chandra in opposing the retraced text as the genuine text of the drama. सब लोगों ने मान लिया, उन्होंने कह दिया तो सबने मान लिया, हाँ देवनागरी पाठ ही कालिदास ने लिखा होगा। एक बड़ा कौतुक का प्रश्न है कि भाई किसके कहने से हम लोग देवनागरी पाठ पठन पाठन में आज उपयोग में ले रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटी में देवनागरी पाठ ही पढ़ाया जाता है। कोई प्रोफेसर जानता ही नहीं है कि दूसरे तरह का भी शाकुंतल चल रहा है और क्यों हमने देवनागरी को पकड़ रखा है। तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण हुआ है। अब कांजीलाल एक ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने 250 पन्ने की प्रीफेस लिखी है। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से उनका संस्करण निकला है, देवनागरी का रिकंस्ट्रक्टेड पाठ। उनमें उन्होंने बहिरंग प्रमाण दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 9 से 12वीं शताब्दी के अलंकार शास्त्रियों के उद्धरण आते हैं। उनसे उन्होंने सिद्ध किया है कि अभिज्ञान शकुंतल का बृहद पाठ ही पहले प्रचार में था। अलंकार शास्त्र में जो भी उद्धृत है वो लॉन्गर वर्जन है। श्रीहर्ष के नाटकों में अभिज्ञान शकुंतल की दृश्यावली का अनुकरण हुआ है। बंगाली पाठ ही अपने परिष्कृत रूप में सुरक्षित है, जो मौलिक है। उनकी दृष्टि से द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, पाठ यात्रा कैसी है, तो सबसे पहले बंगाल में शकुंतल उतरा, वहाँ से मिथिला की ओर गया, वहाँ से कश्मीर की ओर गया, वहाँ से देवनागरी में फैला और वहाँ से साउथ इंडिया की ओर वो टेक्स्ट चली है। किंतु वे प्रक्षेपवादी देख नहीं पाए तथा उच्चतर समीक्षा में भी बहुत स्वल्प अंश में प्रयास किया है। तो दिलीप कुमार कांजीलाल के प्रयास से भी मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ और सर्वथा असहमत हूँ। देखिए कितना हनुमान कुदका लगाया है। जब विद्वान जंप लगाते हैं ना, तो हनुमान जी का समुद्रोल्लंघन भी कम पड़ता है। देखिए सेंटेंस देखिए, इफ एविडेंसेस टेस्टिफाई to the existence of the alleged enlarged version before the 10th century, it would be proper for us in the 20th century to accept the same as more authentic than any interpretative reconstruction. यदि 10वीं शताब्दी के अलंकार शास्त्र में ये लॉन्गर वर्जन मिलता है तो 20वीं शताब्दी में खड़े हम लोगों को मान लेना चाहिए कि वही कालिदास ने लिखा था। 10वीं शताब्दी तक के अलंकार शास्त्र में यदि लॉन्गर वर्जन उद्धृत है तो आज हम 20 या 21वीं शताब्दी में खड़े लोगों को क्या मान लेना चाहिए? वही कालिदास ने लिखा था। क्या क्रिटिकल बात हो रही है ये? Who will accept this thing? अब देखिए वी राघवन जी, मैथिली के पाठ कभी बंगाली की ओर तो कभी कश्मीरी पाठ की ओर झुकता है, अतः उसको चौथी वाचना के रूप में स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि मैथिली पाठ को बंगाली के अंतर्गत भी समाविष्ट किया जा सकता है अथवा कश्मीरी पाठ के अंतर्गत भी रखा जा सकता है।
किंतु डॉक्टर राघवन का अभिप्राय नितांत गलत है और मैथिली पाठ को अन्याय करता भी है। अन्य भारतीय विद्वानों एवं साहित्य रसिकों की तरह डॉक्टर वी राघवन जी भी गंभीर तुलनात्मक अध्ययन में या पाठालोचना में जाना ही नहीं चाहते थे। ये मेरा आक्षेप मानिए तो आक्षेप है, वस्तु कथन माने तो वस्तु कथन है। मैं जो कह रहा हूँ मैं उस पर एकदम दृढ़ता से खड़ा हूँ। ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कंपैरेटिव स्टडी की बात ना कहते हैं, क्रिटिकल एडिशन की बात ना बोल रहे हैं। पाठालोचना के विषय में भी उनके विचार परीक्षणीय है। देखिए क्या बोल रहे हैं। While the evidence of superior merit as among the recension is conflicting and the so-called higher criticism cannot escape becoming subjective, we may not be unduly disturbed by situation created by manuscripts. If we leave out the Shrungaric elaboration in Act 3 in the Bengali version and the most unlikely interact to Act 7, the area of difference is small and a large part of the play is common to all the recensions. So that we have, for evaluation and enjoyment of the great poet, a net amount of his work is intact, which is considerably large. The vagaries of the ideal pen or the breath of misplaced enthusiasm and mistaken taste have not touched the immortal, imputable lines of Sarasijam Anuvidham, Shaivalena Viramyam, Anaghradam Pushpam, and Shlok Chatushtayam of Tat Kanva in Act 4. बस आप क्रिटिकल एडिशन की जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो सब बंद कर दीजिए। बहुत कुछ अच्छा बच गया है कालिदास के नाम पर, उसका आस्वाद लेते रहिए आप लोग। क्यों इस वर्कशॉप में आके बैठे हैं आप लोग? ये वी राघवन जी बोल रहे हैं हमको। मुझे लगता है कि कालिदास की ये अभिरूप उपहिष्ठा परिषद आज भी श्रृंगार रस में डूबी हुई है, बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। मैं समझता हूं कि यहाँ हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा विराम रखें। बाद में एक्चुअली मैंने जो काम किया है वो अब मैं प्रस्तुत करूंगा। ठीक है।